not only respects its own diverse religions, but at the same time, it respects other religions as well as their religious sentiments like Christianity, Judaism, Muslims, Parsis, etc. In this documentary, we will introduce you with such people who belong to a certain race called Judaism. We will see various synagogues, Jewish people from all over Canada, and will be learning some essential elements of their history, religion, and culture. So guys, from where shall we start? अलिबाग. अलिबागचा सिनेगॉग खूप भारी आणि जबरदस्त आहे कारण चला. असं वाटतंय सगळे वेडेच मीच तेवढी चांगली मुलगी आहे. Set in relatively quiet residential area of the coastal town of Alibag, Magen Abbot Synagogue still stands as one of the 13 Bean Israel congregations. That is to say, a group of Jewish people that were organized in the mid to late 19th and early 20th century. Magen Abbot is a Hebrew word which means defenders of brothers. Bean Israel tradition tells us that there were traders from the Middle East who conducted business in India since ancient times. Eventually, they settled, perhaps more than 2000 years ago, in a collection of small towns and villages in the Raigad district. They lived there for centuries as a mostly isolated, disappearing Jewish enclave, following various Jewish customs and lifestyle practices among larger Indian communities. Centuries later, many of the Bean Israel relocated to Mumbai as well as Ahmedabad, Pune and Karachi. When these cities were expanding and offering job and lifestyle opportunities, some of the Bean Israel Jews chose to stay in the Konkan region as others moved away. For those that remained here, this synagogue and others continued to remain active religious and communal centers for many more decades. According to the Jewish law, when Jewish boys become 13 years old, they become accountable for their actions and become a bar mitzvah. The bar or bat mitzvah ceremony is usually held on the first Shabbat after a boy's 13th and a girl's 12th birthday. अभी हमारे इधर कम्युनिटी बहुत कम है. अभी 13 साल का हो गया. 13 साल का हो गया बोले तो अभी हमारे इसमें गिनती में आ गया. समझ में? यानी प्रेयर जब हम लोग करते तो 10 लोग कंटिन्यू करते हैं. अब 10 हमारा 9 होएगा और वो 10वां होएगा तो हमारा प्रेयर होगा पूरा यानी तोड़ा का पूरा. और 13 बरस पूरा होने के बाद वो लड़की को सब आना मांगता है, प्रेयर करने के लिए आना मांगता है, पूरा स्टडी करना मांगता है. अच्छा, एवरी मील के बाद आप
आपको मिलेगा ना, उनका सरनेम खाली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है ना, अभी मेरा नाम सरनेम में सोगांव है, तो मेरा गांव उधर सोगांव है, इसका है वास्कर वाशी है, अवास्कर अवास है, सब अष्टमकर अष्टमी है, रोहेकर रोहा है, ऐसा यानी इधर का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का वही नाम लिया सरनेम नाम और इजराइल जो कंट्री है, तो इजराइल का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? इजराइल वर्ड का क्या वो किसी इंसान का नाम है कि इंसान का इजराइल है जो जनरेशन बाय जनरेशन पहले लोग सन नॉट ठीक है, हम लोगों का जो गॉडफादर है उसका नाम था अब्राहम, उसका जो बेटा था उसका नाम था इसाक, और इसाक का जो बेटा था उसका नाम था जेकब। जेकब का नाम जो है वो ईश्वर ने इस्राएल कर दिया। एक क्षण लागतो कोणाला तरी रडवण्यासाठी, एक क्षण लागतो कोणाला तरी हसवण्यासाठी, पण भारत आणि यहुदी लोकांसारखं फक्त एका चांगल्या भावनांची गरज आहे प्रेम करण्यासाठी, आणि या दोन्ही धर्मांसारखं संपूर्ण आयुष्य लागतं एकत्र संबंध सांभाळून ठेवण्यासाठी. After exploring the beauty of Alibag's Meganabad Synagogue, let us now explore the history of Mumbai's Knesset Eliyahu Synagogue. Knesset Eliyahu Synagogue is an Orthodox Jewish synagogue. It is the second oldest Sephardic synagogue, which means in this synagogue we can find Baghdadi Jews, which are completely different from being Israeli Jews. Baghdadi Jews are those Jewish people who have been immigrated from Baghdad in 1832 and have settled here in Bombay since then. So this synagogue is maintained by Jacob Sessions Trust, and we can find various personalities and diversities in this synagogue. The building's significance has been attributed to the Jewish traditions as well as Indian and English colonial influences. So let's have a look at this synagogue. To meet the increasing need of Baghdadi Jews, Knesset Eliyahu Synagogue was constructed on a premium piece of land in the hub of Bombay's commercial area by Sir Jacob Sasson, who was the grandson of David Sasson. Knesset Eliyahu Synagogue was built in the honor of David Sasson's grandfather, Eliyahu Sasson, which was established in 1884 and is located in Mumbai, Kolaba, Kalagoda Fort. You don't see synagogues like this in Israel. It doesn't look like this. It's all modern, and this one is old, and it's very, very excited to be in such an old one. So you're from Bombay? I live in Mumbai. She's from Israel. I'm also from Israel. Some information written in Torah, like what are some basic elements or some rules written in Yes, Torah? of course. You have 10 rules. Okay. To respect your mom and your father. Okay. 10 rules. Respect your mom. Don't steal. Don't steal. Okay. Don't murder. Don't. Murder. Okay. like your friend, like you were saying. Yeah. Respect your friend. Yes. First, like you want him to respect you. Behave him like you want somebody else will behave. Give for you. respect. Give Yeah. In Shabbat, no work. Don't work in Shabbat. We have Shishi Shabbat. It's 2 days holidays every week. Sleep. And what else? Don't cheat on your wife. Yes. And what else? That is the most important thing. The whole Torah build on it. Okay.
गर्व जरूर है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म है। गर्व जरूर है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के धर्म है, लेकिन खुशी इस सच्चाई से है कि मिलजुल कर रहना ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि इंसानियत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। So now it is the time to see where did the Bene Israeli chiefs relocated to India. So here is Panvel's Bethel Synagogue for you. Here we go. Another location in India that the Bene Israel and Indian chiefs in general regards with special significance and desire to recite a prayer in the honor of Elijah the prophet at this location is at the Beth El Synagogue, Panvel, India. The Beth El Synagogue was dedicated to the Indian Jewish community on May 17, 1849 on the festival of Shavuot. Most of the chiefs of India, in addition to the Indian Jews who have left India and now live in either Israel, the United Kingdom and the United States among other countries, make a pilgrimage to the Beth El Synagogue to fulfill the vows for their children as well as celebrate the Malida, which includes the recitation of the prayer for Elijah the prophet regarding the chiefs of India. Indian chiefs believe that the Beth El Synagogue in Panvel is both special and sacred because they believe that reciting a prayer in the synagogue fulfills vows for a birth of child or marriage, etc. After the fulfillment of the vow, Indian chiefs perform the prayer for Elijah the prophet as a part of the Malida ceremony that they hold at the synagogue. The Bene chiefs had a unique custom known as Malida. In Malida, Bene Israel sits with a plate full of rice, spices, fruits and flowers. During this, they praise Lord by singing songs and narrate 2 stories about Prophet Elijah. From this delicious recipe of fruit dishes at this Malida festival, it is believed that khajur has to be eaten first and the banana next. मेजुज़ा हमारे जू इसराइल लोगों के हर एक के दरवाजे में, हमारे जितने भी सिनेगॉग्स हैं उसके दरवाजे पे मेजुज़ा होना ज़रूरी है। मेजुज़ा का मतलब है उसमें हमारे भगवान का नाम होता है शेमा इसराइल अदोनाय एलोहेनु अदोनाय एहाद, यानी गॉड इज़ वन। और घर में आते हैं और बाहर जाते हैं हमको उस पर किस करना पड़ता है, यानी तुम घर से बाहर जाओगे तो ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, घर में आओगे तो आप सुखरूप घर में आए, ये लिखा हुआ है। 1 मिनट और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। आप मंदिर में जाते हैं, तब भगवान के दरवाजे पे जाने के बाद आप कैसे करते हैं, तब अंदर जाते हैं। वैसा ही हमारे धर्म में है, मंदिर में जाओ या घर पे जाओ, वो मेजुज़ा के ऊपर हाथ रखेंगे, आते टाइम बाहर जाते टाइम दोनों टाइम उसके ऊपर हाथ रख के बस। और मेजुज़ा को दूसरा भी एक नाम है, शद्दाई बोलते हैं उसे, शद्दाई, स्ट्रॉन्गेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय शद्दाई? स्ट्रॉन्गेस्ट। हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट? गॉड। बहुत सारे सिनेगॉग्स में ऐसा होता है कि मेल नीचे बैठता है और फीमेल के लिए ऊपर ऐसे होता है, उसके पीछे का पर्पस क्या है? वो क्या है मालूम है? प्रार्थना करते समय तुम्हारा नज़र विचलित नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दिल में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। सामने एक लड़की बैठी होगी, समझो उसने कभी ऐसा पाव करके बैठा तो तुम्हारी प्रार्थना बाजू में तुम उधर देखोगे। 1% चांस है। अभी लेडीज़ लोग के कुछ प्रॉब्लम रहता है तो लेडीज़ लोग को मालूम रहता है, तो उस टाइम पे हमारे जो पुजारी रहते हैं वो मना करते हैं, लेडीज़ लोग ने लेडीज़ गैलरी में जाना है, पुरुष लोग ने पुरुष में बैठना है। मेन कारण यही है कि मंदिर के अंदर तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी नज़र यहाँ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कैसा रहता है? अभी तुम जवान है, अभी तक शादी नहीं हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड है उधर ही, आपका उधर, तो शनिवार जो हम लोग की प्रार्थना होती है, जाना नहीं चाहिए करके रेडी सर और जस्ट नीचे। स्पेशलिटी एंड द मोस्ट यूनिक फैसिनेटिंग थिंग ऑफ बेथ एल सिनेगॉग, यानी यहाँ की सिनेगॉग की सबसे खास बात या स्पेशलिटी क्या है? अभी देखिए महाराष्ट्र में गणेश जी के बहुत सारे मंदिर हैं,
लेकिन सिद्धि विनायक बोले तो एक उसका स्पेशलिटी है ना, लोगों का विश्वास रहता है और वहाँ पर जावे तो आपके मन के सब इच्छा पूर्ण होती है। वैसा पूरे महाराष्ट्र के हमारे जितना बीच समझ है ये पनवेल मस्जिद का हमारे पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे मंदिर है, सिनेगॉग्स है, वहाँ के हर एक मेंबर को हमारे पनवेल के बेतेल पे विश्वास है। I was here actually when I was 10. Okay? 8, 9, 10. Every year we come here to make the Hagim, you know. Holidays, everything. Taking apartment here, been 3 days here, coming to this synagogue. And then when we went to Israel, we always remember उनके दिल में कुछ भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो यहाँ पे आके भगवान को शिकायत करते, शिकायत करने के बाद में भगवान उनकी सुनता है, उसके बाद में वो लोग आके अपना नवस करते। नवस तो मालूम होगा सबको, है ना, हर एक का विश्वास रहता है और विश्वास का आमचा मंदिर पात्र है। अच्छा, पवित्र। हम लोग इस्राएल है लेकिन सबसे पहले हम लोग भारतीय है, हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान में जो कुछ भी समझो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, दिवाली है, गणपति है, तो हम सब त्यौहार का आदर करते हैं, लेकिन हम हमारा धर्म संभाल। हमारे जो इस्राएल लोग हैं, जूस, पूरे दुनिया में बहुत सारे अत्याचार हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे पे कोई भी अत्याचार नहीं हुआ। हिंदुस्तानी लोगों ने हमको ऐसे लिसे मिला लिया जैसे दूध में शक्कर डालने के बाद में कैसा दूध मीठा होता है, वैसा। Now, the time has finally arrived to visit the last but not the least synagogue that is situated at Thane, and it's called as the Shar Hashamayim Synagogue or the Gate of Heaven Synagogue. So, let's go. awarded the Best City Prize by Urban Department of Union Government of India, thereby making Thane the most beautiful and well-maintained city. The Bee Jews are associated with this beautiful city and the Shar Hashamayim Synagogue since the 16th century, having a very strong relation with neighbors of various religions. At the time of Indian independence in 1947 and with the establishment of the State of Israel in 1948, some being Israel numbered around 25,000 in the country. Since there was systematic violations to the state of Israel. Today, there are about 5,500 Jews community in India, and we can find this community in Mumbai, Delhi, Calcutta, Ahmedabad, Pune, Thane, and Konkan areas. Recently, there is a major influx to the city of Thane, whereby 40% of the Jews community of India resides in Thane, making this Shar Hashamayim Synagogue as the center of all the Jewish activities. So come on friends, let's worship this synagogue. I'm Samuel Daniel. I'm born and brought up in Mumbai and settled for last 25 years in Thane. I'm working for a pharma company, but at present, as a social activity, I am the president of this Shar Hashamayim Synagogue. Jesus के बारे में वो एक मिनट अब्राहम एंड सारा ये हस्बैंड और वाइफ थे, ये हमारे सबसे ओल्ड पुरुष बोलते हैं। अब्राहम उसकी शादी हुई थी सारा से। अब्राहम को बच्चे नहीं तब तभी अग्गार HAGGAR अग्गार नाम की जो दासी थी, उस दासी के थ्रू अब्राहम को बेटा, उस बेटे का नाम रखा इस्माइल। क्या रखा? इस्माइल। जैसे इस्माइल हुआ, ये सारा ने उसको परमिशन दी थी अब्राहम, क्योंकि शी कुड नॉट बेयर। एट द एज ऑफ 19 अब्राहम का एक गुण क्या था? अब्राहम का गुण था हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी यानी जो आएगा उसको खाना पीना रहना खाना
इतना करता था वो, उसके दरवाजा आपको कैसे दरवाजा अपन आपको 11 बजे बंद कर देते ना, वो आगे का भी दरवाजा खुला, पीछे का भी दरवाजा खुला, इधर का दरवाजा खुला, और बाहर ही देखते तो कोई गेस्ट आएगा मेरे, कोई भी गेस्ट आएगा तो उसको अरे मटन करो, ये करो, जाओ, अरे खा के जाओ, ऐसा करो। तो 3 बुढ़े लोग ऐसा दाढ़ी बिड़ी बना के वहाँ से आ रहे हैं। अब सारा का एज कितना 90, इसका एज भी उसी टाइप का आराम सारा। अब ये दोनों आराम ने देखा वो 3 बुढ़े आ रहे हैं तो उनको अरे आ जाओ घर पे, सारा देखो कौन आया, वो बकरे खाते उनको खाना भी ना खिला, वो इतने तृप्त हो गए हो। बोले अब्राहम मेरे को मालूम है आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको बेटा होगा। तो हंसने लगे, थोड़ी सी स्माइल किया सारा कि आगे एज ऑफ 90 मेरे को कैसे बेटा होगा। बोले मैं नेक्स्ट ईयर हम लोग आएंगे तभी आपका बेटा होगा, और उसको बेटा हुआ। उसका नाम क्या रखा था? इसहाक, जिसको आइजैक। जैसे आइजैक हुआ, इश्माइल को और हग्गार को आशीर्वाद दिया अब्राहम ने, और लोग अलग हो गए। और ये जो इश्माइल के जो पुत्र है उसकी जो पूरी कर वो पूरे मोमेडियन मुसलमान अरब समझे, फादर इज सेम अब्राहम। अब अब्राहम इसहाक के बाद आया याकूब, जेकब के बाद आया जोसेफ के बाद आया, करते कौन आया? तो जीसस। सो जीसस इज ऑल्सो कोई अब्राहम इसहाक याकूब करते आया। लेकिन जीसस में जैसे आप लोगों में किसी ने जो रहता ना मैसेंजर ऑफ द गॉड, जैसे मैंने इनको ऐसा आ गए ठीक हो गए, ये पावर थी वो गॉड ने उनको दी थी, ही वाज अ गॉड मैन। लेकिन लोगों को क्या लगा था कि ही इज अ गॉड। एक्चुअली जीसस कभी ये नहीं बोला कि आप क्रिश्चियन धर्म स्थापना करो, या कभी नहीं बोला। लॉजिकल क्वेश्चन है कि हाउ डिड ज्यूज इंडिया में है, बट हाउ डिड ज्यूज अराइव टू इंडिया? एनीवन सर? देखो जिन लोगों का नाम हर जगह पे लोगों का अलग अलग, पहले इजराइल कंट्री ने ज्यू लोग वे स्कैटर्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हर जगह पे जर्मन में, हिटलर में 60 लाख ज्यूज को वहाँ मारा। जब अलग अलग ज्यू लोगों को मालूम पड़ा कि आगे और एक बहुत बड़ा अपने ऊपर अटैक होने वाला है, तो वो लोग भागने लगे। भागते भागते वो लोग 2000 साल पहले कोई फिक्स ज्यू लोग का एक बोट बड़ी जगह नागाव कर नाम है, तो नागाव कहाँ है? नवगांव के बंदर बोलते हैं, नवगांव के बंदर पे आगे, लेकिन वहाँ वो बोट टूट गई और बहुत सारे ज्यूज उसमें पानी में डूब गए। लेकिन वहाँ कोली समाज था, मैं जहाँ कोली समाज ने क्या किया, जब मार के 10, 12, 15, 20 जितने ज्यूज हैं उनको अलग करके, जो मर गए जिनको बचा तो उनको बचाना चाहिए। और वो जो ज्यू लोग जो अलग अलग जगह पे डर के मारे यहाँ आए थे कि कहीं अभी अपने ऊपर हमला हो जाएगा, तो वो लोग आगे और यहाँ बस गए, कहाँ? नवगांव। वहाँ से स्लोली वो लोग आगे पेड़, रोहा, नागा, चोरडे, कलिबा, देवगंडा, उधर आके सब, और वहाँ उनकी जनरेशन बड़ी सब। लेकिन इनका मेन व्यापार क्या था? तेल, ऑयल। और इनको क्या कहते हैं वहाँ हमारे में? तेली शब्द, शनिवार तेली। वाई शनिवार तेली? बिकॉज दे ऑब्जर्व शनिवार, दैट इज शनिवार, प्लस दे आर डोंट क्रश द ऑयल, उनको शनिवार तेली बोलते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे मैं अगर 20 साल या 200 साल पुराने पहले आ गए या 2000 साल, लेकिन मेरा बेटा बोला मैं क्यों छोड़ने दे रहा हूँ, मैं क्यों अलीबाग में रहूँ, मैं मुंबई में जाता हूँ, मैं तो अभी पढ़ा लिखा हूँ, तो धीरे धीरे शहर में आना चाहूँ, बॉम्बे में सेटल हो गए। और फिर वहाँ, और ऐसा कहा जाता है, हम लोग खुद की तारीफ खुद नहीं करना चाहिए, ज्यूज आर नोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वो गॉड ने दिया वो इंटेलिजेंस, दे आर द चोजन पीपल ऑफ द गॉड। तो गॉड ने उनको वो इंटेलिजेंस दिया। अगर आप बॉम्बे में भी देखोगे ना, ससुर डॉग, जितने बड़े डॉग, और ससुर हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल? मसीना हॉस्पिटल, मसीना मालूम है आपको? भाईगला पे मसीना हॉस्पिटल, ये पूरी जगह ज्यू लोगों की थी। ये स्टेशन है ना, मस्जिद बंदर, ये मस्जिद बंदर नहीं, ये सिनेगॉग बंदर है, उसका नाम मस्जिद बंदर है, तो वहाँ सबसे ओल्डेस्ट है। तो बॉम्बे में अलग अलग जगह पे आपको देखेंगे कि पुराने ज्यू लोगों के करोड़ोंपति जो थे ज्यू लोगों ने, उन्होंने बॉम्बे को बहुत सारी जगह ऐसे दी थी। इसकी वो सामने की जो बेड शलोम अपार्टमेंट है सामने, अच्छा, तो वो भी जगह हमारी। First of all, when I told you that 2000 years before we came here, and that time Koli Samaj has given us protection, shelter, respect, and they saw that we should be well settled here.
So because of the Maharashtrian people and all the Indian people, we were settled in Mumbai and Maharashtra and all over India. So we will never forget Indians, number one. Secondly, this is the only country where we are very peacefully and happily staying. If you see, Jews are being harassed in Germany. Jews were harassed in many places. This is the only country where government is also helping us to see that we are not being touched by anyone. If you see there is a police and there are 7 to 8 police. इधर डेली रहता है, एक वायरलेस सेट रहता है, इसलिए वो सब प्रोटेक्टेड रहता है और डेली चेकिंग रहता है BDDs का, सीनियर साहब का, ACP, DCP चेकिंग रहता है। अच्छा, और ये everywhere just to see that Jews should not be touched, because can you imagine the importance of the government in our heart? So, and there are many people there saying, why don't you go to Israel and settle? We don't feel like settling there at present. The reason is the Sanskriti and energy is bond. We cannot think कि अरे यहाँ bond सोडून आपण बाहेर जाऊ हे मनात पण येत नाही. We cannot think. पण आमच्या शेजारीला राणे करणे गेलात या बाजूला सावंतकर in Diwali and they give their karachi and modak laddu. In our festival, we give them our food like sappadri and samdran. So they say, "Arey, Sami, tumsa samdran mein aapka." So we have that type of interaction for last 25 years, 30 years, 40 years. We are there. So and that is the reason why we are very happy and we are grateful to the Indians. मुसीबत में भारत सभी का किनारा है। सभी धर्मों का ये देश एक अनोखा सा सहारा है। आज हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि अब तो ज्यूज को भी प्यारा है। ऍक्शन। जय ज्यूस, जय इस्रायल, जय हिब्रू, जय सगळे वेडेच आहेत। मीच एवढी चांगली मुलगी आहे। मी पण चांगला मुलगा आहे। मी पण आणि तुम्ही पण। थँक यू।